Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the second video of time series, the fourth lesson of statistics subject, standard 12th, Gujarat Board. Friends, in the last video we have studied the define of time series, the importance of time series and the components of time series. In today's video we will study the additive model of time series and we will see the methods of time series, in which we will see the advantages and disadvantages of the scatter diagram method and we will see the formulas and steps of least square method. So without wasting time, let's start. Friends, our today's first topic is additive model of time series. This is very important from the viewpoint of board exam. This model has been asked so many times in section B. So please pay attention. The value of variable of the time series yt based on time t is determined with the combined effect of trend t, seasonal component st, cyclical component ct and random component rt. यानी टाइम को आधार मानकर ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, रैंडम कंपोनेंट, इन सभी को कंबाइंड करके अगर टाइम सीरीज yt फाइंड की जाए तो जो मॉडल बनेगा उसे हम एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज कहेंगे. So this relationship is shown as follows in the additive model of the time series, where yt is equal to tt plus st plus ct plus rt. यानी अगर आपको सेक्शन बी में 1 मार्क में एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज पूछा जाता है तो आपको ये लिख देना है और इसी के बेस पर से आपको अगर किसी और कंपोनेंट की वैल्यू भी पूछी जाए तो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे st की वैल्यू पूछी जाए तो फ्रेंड्स st के अलावा बाकी के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे आप इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल, हमारे पास टाइम सीरीज़ का एडिटिव मॉडल इस तरीके से है. अब अगर मुझे st की वैल्यू फाइंड करनी हो तो st के अलावा t मैं इक्वल टू के उस साइड भेजूँगा, ct भी मैं उस साइड भेजूँगा और rt को भी मैं उस साइड भेजूँगा. तो यहाँ पर yt माइनस tt हो जाएगा, माइनस ct हो जाएगा और माइनस rt भी हो जाएगा और इक्वल टू में st रह जाएगा. इसके बाद yt माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो इन सभी की साइन चेंज हो जाएगी, यानी tt प्लस ct प्लस rt इज इक्वल टू st. यानी कि अगर मुझे सीजनल कंपोनेंट चाहिए तो yt में से मैं ट्रेंड, साइक्लिकल कंपोनेंट और रैंडम कंपोनेंट इन तीनों का एडिशन माइनस करूंगा तो मुझे st मिल जाएगा. इसी तरह से अगर मुझे ct की वैल्यू चाहिए तो फ्रेंड्स yt में से प्लस t प्लस st प्लस rt अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे ct मिल जाएगी और अगर मुझे rt की वैल्यू चाहिए तो yt में से मैं इन तीनों का प्लस माइनस करूंगा तो मुझे rt भी मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, yt के इस एक एडिटिव मॉडल से हम इन चारों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड. So friends, there are 3 methods of time series to find trend. The first one, graphical method, second, least square method and third, moving average method. Among these 3 methods, the sums of graphical method are not asked in the exam. From this method only theory is asked, in which merits and demerits of graphical method is the most common question asked from this method.
and the sums from least square method and moving average method are asked in the board exam. So we will see all these method one by one. So friends, our first method, graphical method. This is the easiest method to find trend. The points are plotted on the graph paper by taking the independent variable time t on x-axis and dependent variable yt on y-axis. यानी कि इस मेथड से अगर हमें ट्रेंड फाइंड करना हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम को हम एक्स एक्सिस पर मेंशन करेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल yt को हम y एक्सिस पर मेंशन करेंगे. These points are joined in their order by line segments. This show the variations in the values of the variable. यानी जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर उन सभी पॉइंट्स को हम लाइन सेगमेंट से जॉइंट करेंगे और इन सेगमेंट्स का डायरेक्शन ही हमें हमारी वेरिएबल्स के अंदर आने वाले चेंजेस को बताएगा और हमारे वेरिएबल का ट्रेंड हमें बताएगा. देन अ स्मूथ कर्व इज ड्रॉन थ्रू द मिडल ऑफ द पॉइंट्स बाय पर्सनल जजमेंट. यानी यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे. जो पॉइंट्स आपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए हैं उन सभी पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से जॉइंट करने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस से या अपने पर्सनल जजमेंट से मिडल में से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व आप ड्रॉ करेंगे. दिस कर्व शो द ट्रेंड बाय इग्नोरिंग द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन द सीरीज़. यानी टाइम सीरीज़ में होने वाले शॉर्ट टर्म वेरिएबल्स को या फ्लक्चुएशंस को हम इग्नोर करके इस कर्व के थ्रू ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं. नाउ मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल मेथड. The first point, this method is easy to understand and use. Second, the trend can be found without any mathematical formula or calculation. And third, this method can be used even if the trend is not linear. यानी कि इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला ये मेथड काफ़ी इजी है समझने में. दूसरा, किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल फार्मूला या कैलकुलेशन अप्लाई किए बिना हम ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं और अगर हमारा ट्रेंड लीनियर नहीं है फिर भी इस मेथड से हम ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं. नाउ द लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड. फ्रेंड्स, कई बार सेक्शन सी में सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड भी पूछी जाती हैं तो जस्ट ये 2 पॉइंट लिखकर आप 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं. सो प्लीज़ पे अटेंशन. इट इज़ पॉसिबल दैट different people draw different curves, hence uniformity cannot be maintained. तो फ्रेंड्स, अभी ग्राफिकल मेथड की प्रोसेस में हमने देखा था कि सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर उन पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से जॉइन करते हैं और उन लाइन सेगमेंट में से मिडल में से हम हमारे एक्सपीरियंस पर या हम हमारे ही जजमेंट से एक कर्व ड्रॉ करते हैं. तो वो जजमेंट हर एक इंसान का अपना अलग अलग होगा. यानी यहाँ पर कोई कैलकुलेशन न होने के कारण यूनिफॉर्मिटी का अभाव देखने को मिलेगा. हर एक आदमी अपनी समझ से कर्व ड्रॉ करेगा तो एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है वो फाइंड कर पाना थोड़ा मुश्किल है. एंड द सेकंड, द एस्टिमेट्स कैन नॉट बी एक्यूरेट as this is not a mathematical method and it is not possible to know the reliability of the estimates. यानी इससे जो हम अंदाज या एस्टिमेट फाइंड करते हैं उसमें किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म फार्मूला या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती. इसीलिए इस पर रिलायबल होना या इस पर भरोसा करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो इन 2 लिमिटेशंस को आपको याद रखना है. नाउ फ्रेंड्स, we will study the method of least square. So please pay attention. इस मेथड में से 5 मार्क्स का सम जरूर से पूछा जाता है. बाकी पार्ट 1 के बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी 12 मार्क्स का है और इसमें से भी 5 मार्क का सम सेक्शन F में पूछा जाता है. तो वो 5 मार्क का सम इस मेथड में से ज़रूर होता है फ्रेंड्स.
तो ध्यान से देखिएगा। ये मेथड आपको सीखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले का चैप्टर यानी कि लीनियर रिग्रेशन अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो लीस्ट स्क्वायर मेथड वो आपको 100% आती ही है। जब मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा तब मैं साथ साथ में आपको रिग्रेशन के जो फॉर्मूला है वो भी बताता चलूँगा, तो आपको पता चलेगा कि टाइम सीरीज़ की लीस्ट स्क्वायर मेथड और लीनियर रिग्रेशन की मेथड कितनी सिमिलर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फॉर्मूलाज देखते हैं और लीस्ट स्क्वायर मेथड के स्टेप्स देखते हैं। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि लीनियर रिग्रेशन का सम सॉल्व करते हुए आप जहाँ जहाँ पर x का यूज़ करते थे, टाइम सीरीज़ का सम सॉल्व करते हुए आपको x की प्लेस पर t रखना है। अगर आप x को t से रिप्लेस कर देते हैं तो लीनियर रिग्रेशन का सम सॉल्व करिए या टाइम सीरीज़ का सम सॉल्व करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके स्टेप्स और फॉर्मूला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस पेज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये रिग्रेशन लाइन के लिए और ये टाइम सीरीज़ लाइन के लिए। तो रिग्रेशन लाइन में हम जो स्टेप्स यूज़ करते थे, जो फॉर्मूला यूज़ करते थे, वही स्टेप्स और वही फॉर्मूलाज हम टाइम सीरीज़ लाइन के लिए भी यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम x की प्लेस पर t रखेंगे। तो रिग्रेशन लाइन में हमारा फर्स्ट स्टेप था फाइंड x बार एंड y बार। तो टाइम सीरीज़ में आपको फाइंड करना है t बार एंड y बार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x बार था, हम x बार की जगह पर t बार फाइंड करेंगे। x की प्लेस पर आपको t रखना है। तो x बार फाइंड करने के लिए आप सिग्मा x अपॉन n करते थे, सेम वे t बार फाइंड करने के लिए हम सिग्मा t अपॉन n करेंगे। और y बार का फॉर्मूला जो यहाँ था वही यहाँ भी है। इसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप में हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट b फाइंड करते थे और b फाइंड करने के लिए हम n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इस फॉर्मूला का यूज़ करते थे। इसके अलावा भी कई फार्मूलाज थे, लेकिन यहाँ पर टाइम सीरीज़ में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होगा और वो फार्मूला इस फार्मूला से ही मैच होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही ये फार्मूला लिखा है। तो सेकंड स्टेप हमारा बी था, यहाँ पर भी हमारा सेकंड स्टेप बी ही रहेगा। तो बी का फॉर्मूला आपका रहेगा b इज इक्वल टू एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ केवल x की प्लेस पर t हमने रखा है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ है। b फाइंड करने के बाद रिग्रेशन में जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a के लिए हम y बार माइनस बी एक्स बार करते थे। तो यहाँ टाइम सीरीज़ में भी हमारा थर्ड स्टेप वही होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और हमारा फॉर्मूला रहेगा y बार माइनस बी टी बार। तो यहाँ पर भी मैंने x बार की प्लेस पर t बार रखा है, बाकी फॉर्मूला सेम है। सो फ्रेंड्स, रिग्रेशन में हमारा फोर्थ स्टेप था फाइंड द रिग्रेशन लाइन कैप ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। टाइम सीरीज़ में भी हमारा फोर्थ स्टेप सेम रहेगा। यहाँ पर हम टाइम सीरीज़ लाइन या उसे दूसरे शब्दों में ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, वो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, कैप ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी टी। फॉर्मूला आप कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट हमने x को t से रिप्लेस किया है, बाकी फॉर्मूला सेम है। और स्टेप नंबर 5 वो रिग्रेशन में हुआ करता था इफ़ एस्टिमेट इज आस्क्ड फॉर y फॉर द गिवन वैल्यू x, यानी कि x की दी गई वैल्यू पर अगर y का एस्टिमेट करने को कहा जाता था तो हम रिग्रेशन लाइन में x की प्लेस पर दी गई वैल्यू रखकर y का एस्टिमेट करते थे। सेम वही स्टेप हमें यहाँ पर भी करना है। अगर यहाँ पर भी t की दी गई वैल्यू पर आपको y का एस्टिमेट करना है तो आप आपकी टाइम सीरीज़ लाइन या ट्रेंड लाइन के अंदर t की प्लेस पर दी गई वैल्यू रखकर y का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ टाइम सीरीज़ वो लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ लीनियर रिग्रेशन से बिल्कुल मैच होती है, जस्ट हमें x को t से रिप्लेस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड सम्स देखेंगे, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the methods
formulas and sums that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलता रहे. बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें. गुड बाय.